प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धरामापर। Hare Krishna. So we would like to welcome all the devotees on this most auspicious day of appearance of Lord Sri Vaman Dev. Today is Vaman Dwadashi, and this week has been very important week, and many important festivals and functions have been there. Starting from say Radhashtami, indeed Janmashtami. So from Janmashtami, Radhashtami, but last week Radhashtami, then yesterday was Ekadashi, Parshva Ekadashi. Today is Vaman Dwadashi, appearance of Lord Shivaman Dev. Also, meaning yesterday actually,
So yesterday also was appearance day of Srila Jeev Goswami and appearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur. And today is appearance of Bhaktivinoda Thakur. Yesterday was appearance of Jeev Goswami. And tomorrow is Anant Chaturdasi Vrat, which is also the disappearance day of Namacharya Haridas Thakur. And then on 10th is very important day, Shri Vishwarup Mahotsav, or on 10th is also for us very, very important because that's the day of acceptance of sannyas by Srila Prabhupada. And Radha Ashtami is also acceptance of sannyas by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So very, very nice. So wonderful festivals. The full week is the week of festivity, and it's a time for us to meditate. And first of all, I would like to express my gratitude to all the devotees, and particularly would like to thank His Grace Rameshwar Kanai Prabhu for giving me an opportunity to serve all the devotees and also continuing this yajna of Srimad Bhagavatam since so long. And my heartfelt gratitude and personal thanks to His Grace Sukhkar Krishna Prabhu, who is our inspiration and our senior, always guiding us and with so much of enthusiasm. So thank you, Prabhuji, for your blessing. And to all the devotees, who are in the forum, I would like to seek all your blessing, so that for the pleasure of Lord Shri Radha Krishna, Shri Radha Shyam Sundar Ji, Radha Madhav, Radha Gopinath Ji, and for my own purification, we speak something from today's very, very important day, Sri Vaman Dwadashi, mainly. But just now, Sukkar Krishna Prabhu also told me to tell something about Bhakti Vinod Thakur. So I was just thinking that maybe just couple of sentences we will start, and we'll tell about Jeev Goswami. We'll say about Bhakti Vinod Thakur, about Haridas Thakur, and Srimati Radharani also. Just one or two to think about Radharani. Just to start with our discussion. Otherwise, I think it is very difficult even to attempt to glorify. On the day of Radha Ashtami, Rameshwar Kanai Prabhu had actually requested me, but I had already committed for Avtari Desh Yatra, and there was a physical program. So obviously I couldn't come and serve. But on that day, I was saying that glorifying or even attempting to glorify Srimati Radharani is like, there is a small frog sitting at the bank of Arabian Ocean. So we are in the Arab world, so I'm quoting this. Otherwise, so, and he's trying to fathom the depth of Arabian Ocean or Atlantic Ocean for that matter. Or a small frog is trying to cross over this vast ocean. Is there any possibility? Even the probability is very, very less that a small frog can even cross the ocean or even can know the depth of the ocean. So the glories of Srimati Radharani is like depth of the ocean. Even Krishna cannot understand. Even Krishna cannot sufficiently glorify. So who are we? It is very, very difficult. But if Radharani herself gets pleased and she is merciful, then she can put, wing to that frog, and the frog can fly, and maybe he can cross. So Pangu Langayate Girim. So Mukam Karoti Vachalam Pangu Langayate Girim Yat Kripa Tamham Vande Shri Guru Deenataranam. So it is only and only by the mercy of the Guru Vrind and the Vaishnavas that we can even attempt to even understand the glory of, to understand glory of Krishna is impossible. Lord says, Manushyanam Sahastresu Kaschit Yadati Siddhe, that out of crores and millions of people, only some people can understand Krishna, and that Krishna cannot understand Srimati Radharani. So it is quite a contradiction
quite difficult that somebody may be even able to understand. But only based on Srila Prabhupada's teaching, we are very fortunate that we got this connection with ISKCON, with connection with Srila Prabhupada through our Guru Vrinda and Vaishnavas, that in this, because Radha Krishna can be understood only through the channel of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Krishna, he couldn't understand that why Radharani has so much of love for Krishna. Like for example, Krishna has Krishna Prem. Inside Krishna is Krishna Prem, right? So like if you squeeze orange juice will come out. If you squeeze mango juice will come out. If you squeeze Krishna, nobody can squeeze Krishna for that matter. But if somebody touches Krishna, what will come out? Krishna Prem will come out. But that Krishna Prem, can Krishna taste that Krishna Prem? No. Like for example, sugar. Who can sugar itself taste the sweetness of sugar? No. Who tastes? The tongue. The tongue can only get aswadan of that sugar. There is a wonderful nectarian milk in the udders of the cows, but can cow taste the milk? No. Only a calf can do. There is a nectar inside a lotus, inside flower, but the flower itself cannot enjoy the nectar, but the bumblebee, Bhaura, he enjoys. So similarly, Krishna has Krishna Prem, but Krishna is not able to enjoy that Krishna Prem himself, but Radharani enjoys that. And Krishna, he tries to understand that why Radharani actually, enjoys so much seeing me. And just to know that he comes in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We know this, that Shri Radhar Bhave a Gora Avatar, Hare Krishna Nam Gaur Karila Prachar. So there is no difference between Radha and Krishna. Radha Krishna Eka Atma Dui Deha Dhari, Anyana Vilase Rasa Aswadana Kari. Krishnadas Kaviraj Goswami says, Radha Krishna Eka Atma Dui Deha Dhari. They are one actually. Sometimes some people ask that why Krishna and Radha didn't get married. So for marriage you require two people, but Radha and Krishna is one. So obviously there was a marriage also of Radha and Krishna. There is a Brahma Vivar Puran, Brahmaji does that. But anyway, Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Mana, Dui Vastu Bhed Nahi, Shastrera Pramana. It says there is no difference, absolutely no difference between Radha and Krishna. They are one and the same, but just for doing Leela, they actually get separated, or they are two separate personality who also becomes one as Lord Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna nahi anya. So जिस प्रकार दूध से धवलता, चांद से चांदनी, अग्नि से गर्मी और पुष्प से सुगंध को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है। जिस प्रकार से हरे पत्ते के अंदर गुड़ लालिमा छिपी हुई है, तो मेहंदी का हरा पत्ता अगर आप पकड़ो और उसको रगड़ो तो क्या होगा? लालिमा बाहर आएगी। उसी प्रकार से रस शास्त्र श्रीमद् भागवतम, प्रेम शास्त्र श्रीमद् भागवतम में बाहरी रूप से भले राधा का नाम प्रकट न हुआ हो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम बार बार प्रकट किया है, हर जगह प्रकट किया है। हम एक दो श्लोक जानते हैं स्पेसिफिकली, अन्य और आराधिता नूनम, जिसके अंदर हम बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रेम की दृष्टि से देखा जाए या सुखदेव गोस्वामी महाराज की दृष्टि से देखा जाए, तो हर एक जगह उन्होंने श्रीमती राधा रानी को याद किया है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब जब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, व्हेनेवर सुखदेव गोस्वामी महाराज अटेम्प्ट्स टू स्पीक, व्हाट इज रिटन इन श्रीमद् भागवतम? श्री शुक उवाच, राइट? श्री शुक उवाच। एंड हु इज श्री? श्री कौन है? श्री राधा रानी। यस, श्री राधा रानी। हाँ, जैसे हम लोग बरसाना में जब जाते हैं तो लाडली लाल का मंदिर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? श्री जी मंदिर में जा रहे हैं। तो श्री जी राधा रानी के, जहां जहां पे भी श्री जी का नाम आया है वहां पे राधा रानी है, प्लस उनको रमा, लक्ष्मी, आराधिता और इस प्रकार से बहुत जगह पे उन्होंने घोषणा की है। तो बहुत सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। और भगवान राधा रानी का केवल एक कार्य है, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना। वो गोविंद, गोविंद का मतलब क्या है? जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले को गोविंद कहते हैं। और वो गोविंद जो है,
गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। वो उनको प्रदान करती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो राधा के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं और उसको जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वो राधा को पूरा नहीं समझ सकते, तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु एक बार नहीं आते, अलग अलग कलियुगों में अलग अलग बार प्रकट होते हैं। तो एक बार प्रकट होकर राधा रानी को की महिमा समझने का प्रयास करते हैं तो और राधा रानी की महिमा बढ़ जाती है और फिर चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ता है। तो एनीवे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर हमको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा, और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए तो गुरु वृंद को प्रसन्न करना पड़ेगा, वैष्णव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और तब जाके कहीं हम भगवान को समझ पाएंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यो माम वेति तत्वतः, भगवान कहते हैं ना कि मुझे तत्व से, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्व से मुझे समझना है, और तत्व अर्थात पंच तत्व तो भगवान राधा कृष्ण को समझना है तो पंच तत्व के हिसाब से समझना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। तो राधा तत्व को पंच तत्व से समझेंगे तो बहुत सुरक्षित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय नहीं है, वो अनुसरणीय भी नहीं है। जैसे भगवान रामचंद्र जी की लीला जो है वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय तो खैर नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन अनुसरणीय है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं है, अनुसरणीय नहीं है, केवल अनुस्मरणीय है। हम केवल उसको स्मरण कर सकते हैं, उतना ही है। हमारे में और कोई क्षमता ना कोई योग्यता है कि हम भगवान की लीला को समझ सके, बोल सके, हाँ, या उसको समझने का प्रयास भी करें। इसलिए हाँ, हम अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर जो ये हमारा आंदोलन है जो प्रभुपाद जी ने दिया उसको चलते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को पा पाएंगे और उनकी जो कृपा है उसको हम पा सकेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा श्रीमती राधा रानी के विषय में। और उसके बाद जीव गोस्वामी, तो अभी जीव गोस्वामी हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक है, षड गोस्वामी से। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो श्री जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक चीज जो मेरे ध्यान में अभी इमीडिएटली आ रही है वो ये है कि भगवत गीता में 700 श्लोक है, भागवतम में 18,000, महाभारत में 1 लाख, और वैसे ही विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और अन्य बहुत सारे पुराणों में किसी में 50,000, किसी में 20,000, किसी में 40,000, इस तरह से श्लोक है। तो अगर आप सारे श्लोकों को एक साथ मिला लोगे, रामायण में 24,000, तो लगभग लगभग 4 लाख का फिगर बनता है, रफली 4 लाख श्लोक है। और आप लोगों को शायद जान के आश्चर्य होगा कि आपको शायद ज्ञात होगा, पता होगा कि अकेले जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की है। एक हरि बोल तो बनता है, हरि बोल सो जीव गोस्वामी ने हरि बोल 4 लाख श्लोकों की रचना की है, जो सोचो इट इज इन ह्यूमन टास्क। एक तरह से देखा जाए 4 लाख, हम लोग 700 श्लोक भी याद नहीं कर पाते हैं, पूरे जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन 4 लाख श्लोकों की उन्होंने रचना की है। और भगवान के बड़े अद्भुत भक्त है, श्री चैतन्य महाप्रभु के सेकंड, उनके बाद की जनरेशन में जीव गोस्वामी was the main person, who gave nourishment to नरोत्तम दास ठाकुर, to श्यामानंद पंडित। तो उन लोगों को, और सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, संकीर्तन पार्टी जो शुरू हुआ वो भी जीव गोस्वामी के निरीक्षण में ही हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मतलब बहुत ग्लोरीज है, उनकी ग्लोरीज हम बोलते जाए तो बहुत कम है कि, पर केवल हम इतना कहना चाहते हैं कि हम जीव गोस्वामी, आज भी हमारे वृंदावन में जीव गोस्वामी की जो राइटिंग्स है
उन्होंने षड संदर्भ लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारा जो राइटिंग है जो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु तो केवल एक शिक्षाष्टकम लिख के अपने हाथों से पीछे छोड़ के चले गए, और उनके बाद में उनके जो षड गोस्वामी भक्त, मेनली श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, और अन्य गोस्वामी ने, तो वो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट षड गोस्वामी में से एक है। और उसके बाद आए सेवेंथ गोस्वामी, एंड हु इज दैट सेवेंथ गोस्वामी? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। सो भक्ति विनोद ठाकुर को सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, हमारे परम गुरु श्रीला प्रभुपाद, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके पिता और उनके गुरु के गुरु आप बोल सकते हो, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और गौर किशोर बाबा जी महाराज स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर से इंस्पिरेशन लेते थे। तो बाबू केदारनाथ दत्त, ये कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं, और भगवान के बहुत बड़े भक्त, जिनको पायनियर ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट कहा जाता है। हरे कृष्णा मूवमेंट जो ऑलमोस्ट लुप्त हो गया था, उसको वापस से रिवाइव करने वाले श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। बाबू केदारनाथ दत्त एक मैजिस्ट्रेट थे, जज थे, और अंग्रेज, उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, और ब्रिटिशर्स ने उनको दे हैड एक्चुअली अपॉइंटेड हिम एज द मैजिस्ट्रेट, एज द जज, एंड परक्विजिट में उनको क्या दिया था? दे गेव वन फुल रेल लाइन उनके घर से लेके कोर्ट तक पूरा रेल लाइन बिछाया था, जो आज भी है नादिया डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम जाए कलकत्ता के पास में, तो स्वानंद सुखद कुंज उनके घर का नाम है, और उनके घर से एक रेल लाइन शुरू होती है कोर्ट तक, और बहुत ही फटाफट डिसीजन लेते थे, एंड हिज लाइफस्टाइल आल्सो वाज वेरी एग्जाम्पलरी। अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय हमारा चले जाएगा उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफस्टाइल। और ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अस हु लिव हियर आर लाइक गृहस्थस, एंड वी शुड एक्चुअली एस्पायर टू फॉलो भक्ति विनोद ठाकुर। गृहस्थों में सबसे उत्तम एग्जाम्पल अगर आता है तो पहला नाम भक्ति विनोद ठाकुर का लिया जाता है। तो उनका आविर्भाव दिवस है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और बहुत सारे भजन लिखे, जो वेद वाक्य से कम नहीं है। आज हम जितने भी भजन गाते हैं, मोस्ट ऑफ द भजन भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के हैं। तो इतने सारे भजन, गौर आरती जो हम शाम को करते हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कितने सारे भजन है, मतलब बोलना शुरू करें तो मतलब 2-4 दिन भी कम पड़े भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए। और फिर हरिदास ठाकुर, कल उनका तिरोभाव दिवस है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य, शिला हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जबकि वो ब्राह्मण परिवार से भी नहीं थे, वैष्णव परिवार से नहीं थे, यवन परिवार से थे, लेकिन उनको नामाचार्य की पदवी प्रदान की, सबसे उत्तम। तो हरिदास ठाकुर जो है, अभी वही है कि एक टॉपिक पे अगर हम बोलना शुरू करें तो बहुत लंबा समय चले जाएगा, बट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि हम इतना नहीं बोलेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर वो पर्सनालिटी है कि लोग जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए अंदर जाते थे, लेकिन वही जगन्नाथपुरी में वही जगन्नाथ भगवान अपना दर्शन देने के लिए बाहर आते थे, और वो दर्शन देते थे हरिदास ठाकुर। So you can imagine that everybody in the world is going to inside the temple to have darshan of Jagannath, but because Haridas Thakur, due to his external situation, couldn't enter Jagannath temple, the same Lord Jagannath would come out to give him darshan and prasadam. Every day. My God, can we imagine the good fortune? Jai Gaura, Sai Krishna, Sai Jagannath. That Jagannath will come out, and he will give his mercy, and when Haridas Thakur became very, very old, Haridas Thakur, as we know, he used to chant 192 rounds, something which is impossible for a human mind to even understand and comprehend. बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। 16 माला भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, भार के जैसा लगता है। कई बार 16 माला होने के बाद 70वें माला में ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया है, और बहुत डिफिकल्ट है। मैं मजाक में कई बार बोला करता था कि एक हिंदी में मुहावरा, आंखों में पानी आना, इसका मतलब है कोई बहुत मुश्किल काम करना। एंड आई यूज्ड टू से दैट जब कोई मुझे 17वां राउंड करने को कहता तो मेरी आंखों में पानी आ जाता है।
सो वो खुशी के आंसू नहीं है। तो हरिदास ठाकुर 192 राउंड, 192 राउंड 22 घंटे चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध नाम लेते थे भगवान का, और अपने शुद्ध नाम के आधार पे उस वैश्या को उन्होंने भक्तिन बना दिया, इतनी बड़ी डिवोटी बना दिया। हाँ, वो सब हम जानते हैं। और 22 बाजारों में उनको मारा गया। हाँ, लेकिन 22 बाजार में केवल एक ही आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जल्लाद जो थे वो भी उनके पैरों में गिर पड़े, बोले हरिदास। हाँ, तो उनको बचाने के लिए हरिदास ने अपना प्राण एक बार के लिए बंद कर दिया। वो हरिदास ठाकुर, उसके पास गोविंद चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट, ही केम and he said that please accept this prasad of Jagannath. And then he said, yeah, I must accept Jagannath's Mahaprasad. And then he was not well. So Govind went and reported to Chaitanya Mahaprabhu that your devotee Haridas Thakur is not well. And when Chaitanya Mahaprabhu went and he asked, Haridas, how are you? And Haridas said that my body is all right, but my mind is gone. I'm sick in my mind. And he said, why? What happened? He said, because I am not able to complete my round because of my health condition. And Chaitanya Mahaprabhu said, enough Haridas, you have chanted enough. Now you can stop. And Haridas said, no, I must complete my quota. I must chant all my round. And Prabhupada writes a very brilliant and fantastic purport for all of us in that episode. And he said that if somebody is not able to complete his prescribed number of rounds, 16 for all initiated devotees and more, then he should be considered in the diseased condition of life. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिदास ठाकुर ने ये एक हमारे सामने प्रकाश किया कि किस प्रकार से बहुत जरूरी है। और संख्या पूर्वक नाम गान भी, षड गोस्वामी, उनको क्या जरूरत थी? वे तो भगवान के प्रेम में उन्मत्त थे। त्यक्त्वा तूणम शेष मंडलपति, एक तूर्ण के भांति एवरीथिंग दे एक्चुअली गेव अप, और भगवान के पीछे पीछे पागल होके ढूंढ रहे थे। हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कुतः। उनको क्या जरूरत है? लेकिन वो भी अपने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स चैंट करते थे। इसलिए संख्या पूर्वक नाम गान भी, संख्या पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु अपना राउंड काउंट करते थे। एक बार हमारे सामने की बात है, somebody asked His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj a question, and if you know, Jayadvaita Maharaj has a very peculiar style of answering question, and he answers only in like one word or maximum one line. That is generally, very, very wonderful personality, one of the greatest devotee in our ISKCON movement. So somebody asked that why should I chant on beads? Or why should I count? And Maharaj replied, he said, Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted on beads. Shad Goswami Prabhugan chanted on the beads. Narottam Das Thakur chanted on the beads. Then he said, Jagannath Das Babaji chanted on beads. Gaur Kishore Das Babaji chanted on beads. Bhakti Vinod Thakur chanted on beads. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur chanted on beads. Prabhupada chanted on beads, and I am also chanting on beads. And then he stopped. So that means he said, you also chant. He said, don't think too much. Everyone is doing, just follow. Mahajano yena gataha sapantha. That is the way of doing it actually. Anyway, so let us come back today to our topic of Vaman Dwadasi. So I'm sorry, थोड़ा सा हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अभी शुक्र कृष्ण प्रभु ने मुझे कहा था कि थोड़ा हिंदी में भी बोलना। अभी समय की मर्यादा है, हमारे पास समय बहुत कम है। हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। So I will primarily speak in Hindi if you permit me, and then something in between I will chant in English, because आज इंग्लिश वाले लोग ज्यादा नहीं, मुझे लगता है हिंदी समझने वाले लोग ही है। तो let me only Hindi is okay, Prabhu. Then fine, because it will save some time, Prabhuji. Yeah, that's what we need, more and want to hear more. तो महाराज परीक्षित, a very wonderful personality indeed. अभी मेरे को एक चीज याद आई अभी just now, तो I'm telling you that शुकदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, दसम स्कंद में जब रसा पंचाध्याय पे वो आए, तो बहुत सतर्क होके, बहुत संभल के, और बहुत ही कहते हैं ना एकदम
एकदम एकदम संभल कर वो कथा सुना रहे थे, और इसीलिए उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं ना कि राधा का नाम भागवत में डायरेक्टली नहीं है, और उन्होंने अन्याराधिता नूनम, हाँ, ये जो वर्ष है भगवान, तो बेसिकली जब उन्होंने कहा तो क्यों वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन ये था कि अगर वो राधा का नाम लेंगे तो 6 महीने मूर्छित हो जाएंगे। हाँ, और परीक्षित के पास 7 दिन थे, और 7 दिन 7 रात में उनको भागवत कथा पूरी करनी थी, तो इसलिए उन्होंने राधा का नाम ले लिया। और दूसरा, उनको ये डर था कि ये परीक्षित जो है, ही इज इंक्विजिटिव डिवोटी बहुत प्रश्न पूछते हैं वो। हाँ, आप सोचो, पूरा का पूरा भागवत जो है वो प्रश्न उत्तर है, और कई लोगों के बीच में प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं। हाँ, शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, विदुर और मैत्री मुनि के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में प्रश्नोत्तर सुन रहे हैं, और बार बार परीक्षित कहीं ना कहीं प्रश्न पूछते रहते हैं उसको। और कई बार, जैसे यहाँ पर भी, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने प्रश्न पूछा, इसलिए वामन देव की लीला जो है बाहर आई। तो कई बार वो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान ऐसा कैसे हुआ, आप बताइए मुझे सुखदेव गोस्वामी जी कि ऐसा कैसे हुआ कि भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया। भगवान को क्या आवश्यकता थी बलि से इस प्रकार से दान मांगने की और सब कुछ छीन लेने की? व्हाई ही वुड हैव डन लाइक दिस? तो इनके इस प्रश्न का उत्तर करने पे, उसका स्पष्टीकरण करने पे सुखदेव गोस्वामी ने वामन लीला सुनी। तो सोचो, एक एक जगह पे परीक्षित प्रश्न पूछते थे और लीला बाहर आती थी। हाँ, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अघासुर का वध हुआ और ब्रजवासियों को 1 साल के बाद पता चला, आगे बढ़ गए। तुरंत महाराज परीक्षित ने रोकर कहा, ऐसा कैसे हुआ? 1 साल तक पता क्यों नहीं चला? 1 साल तक क्या हुआ आप बताओ डिटेल में। तब सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई। तो इसी प्रकार से बार बार वो प्रश्न पूछने लगते थे कि ऐसा क्यों? ये जो इतना अधम था अजामिल, उसको उसको कैसे मतलब वैकुंठ प्राप्त हो गया? एक बताओ, सब सब प्रश्नों का उत्तर उनको चाहिए। तो यहाँ पूछे कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसका स्पष्टीकरण करते हुए और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सुर और असुरों में युद्ध हुआ। अभी सुर और असुर कौन है? जिनका सुर भगवान के सुर के साथ मिलता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वो सुर है। और जिनका सुर भगवान के सुर के साथ नहीं मिलता, वो असुर है। तो ये दो कैटेगरी के लोग हमेशा सनातन काल से चले आते हैं, और इन दोनों के अंदर कई बार युद्ध होता है, क्योंकि अपना अपना प्रभुत्व चाहते हैं। तो कई बार जो है वो असुर सुर पे भारी पड़ते हैं, कई बार सुर असुर पे भारी पड़ते हैं। तो इस बार ऐसा हुआ कि असुर हार गए। हाँ, और उस समय असुरों के राजा थे बलि महाराज, तो वो मारे गए, बलि मारे गए, सारे असुर हार गए और देवता लोग जीत गए। हाँ, तो जीतने के बाद वो सक्सेस पार्टी मनाने लगे। ऐसा होता है ना, कोई हमारी जीत हो जाती है तो वी सेलिब्रेट, तो वो अपना जीत सेलिब्रेट करने लगे। दे स्टार्टेड देयर सेलिब्रेशन, सक्सेस पार्टी करने लगे। और सक्सेस में अंधे होकर यहाँ पर क्या हुआ कि जो राक्षस ऑलमोस्ट मारे गए थे, बलि को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र बोल के और वापस जिला दिया और सारे असुरों को वापस जिंदा किया। और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत मन से सेवा की। और सेवा करने पे और उनको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते गया। तो अभी क्या हो रहा था कि असुर लोग तपस्या करने लगे। सुर लोग क्या कर रहे हैं? सुर लोग क्या कर रहे थे? अभी मैंने कहा व्हाट द देवतास वेर डूइंग, पार्टी, एंजॉयिंग, पार्टी कर रहे थे। वो लोग पार्टी कर रहे थे, दे वर सेलिब्रेटिंग। और वो अपना सोम रस पीते हुए, झूमते हुए, गाते हुए अपने पार्टी में बिजी थे। तो सुर लोग जो है वो पार्टी कर रहे हैं और असुर लोग तपस्या कर रहे हैं। सोचो क्या सिचुएशन है। असुर तपस्या करके और शक्ति हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी शक्ति क्षीण हो रही है। और उस मदांत में क्या हुआ कि ऐरावत के ऊपर इंद्र बैठा हुआ है, राजा, और वहां पर उनके गुरु की एंट्री हुई। कौन? उनके गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जी आए और बृहस्पति जी ने उनको भगवान का महाप्रसाद के रूप में एक हार प्रदान किया, एक गार्लैंड उनको दिया। और इंद्र अपने मदांत में बहुत खुश था कि भाई मैंने कितना बड़ा काम किया है, असुरों को हरा दिया। वो माला उठा के और ऐरावत को दे दिया। और ऐरावत तो हाथी है, उसको क्या पता, उसने ऐरावत ने माला घुमा के और नीचे पटका और अपने पैर से उसको कुचल दिया। तो जब
बृहस्पति ने देखा कि अरे इस प्रकार से भगवान के महाप्रसाद का अपमान कर रहा है, और हाथी से नीचे उतर के गुरु को प्रणाम नहीं किया। ऐसे कहते हैं कि वैष्णवों को इमीडिएटली प्रणाम करना चाहिए, इसलिए हम लोग दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये उच्चारण करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हिंदी पद्म पुराण में तो इतना लिखा है that to see a devotee and not become happy is an offense, कि कोई भक्त को देख के हमको प्रसन्नता होनी चाहिए, अगर प्रसन्नता नहीं होती तो ये भी अपराध है। तो भक्त का अपराध तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाथी पर बैठा हुआ इंद्र नीचे उतर के और अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो ऑब्वियसली गुरु को खिन्न किया, इसके लिए उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। और बलि महाराज अपनी सारी सेना के साथ में वापिस अपने आप को रिजुनोवेट करते हुए आए, और आके उन्होंने क्या किया, इंद्र पे आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने इंद्रपुरी पे आक्रमण किया और सुरों को मार मार के पीट पीट के भगा दिया उनको, क्योंकि उनकी शक्ति तो क्षीण हो गई थी, गुरु अपराध उन्होंने कर दिया था। तो गुरु अपराध करने की वजह से और इतना भोग विलास करने की वजह से उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा भोग विलास में लिप्त होता है, उसकी शक्ति शनै शनै उतनी क्षीण होती जाती है। भोगी रोग भयम कुलच्युति भयम वृत्ते निपालाद भयम। भोगी रोग भयम, कि जो बहुत ज्यादा भोग करता है उसको रोग का डर लगा रहता है ना। बहुत ज्यादा मिठाई खाऊंगा तो डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। कोई बहुत जगह ज्यादा व्याभिचार करेगा उसको HIV हो जाएगा। कोई ज्यादा और कुछ गलत कार्य करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि अपने इंद्रियों का दमन करना चाहिए। एनीवे, तो इस प्रकार से वो बलि आके और उन पे अटैक किया और उनको मार मार के भगा दिया। और जब मार के भगा दिया और इंद्र आसन पे खुद बैठ गए, और इंद्र कहीं डर के मारे छुप गए और अपने पुत्रों को न देखकर अदिति बहुत दुखी हुई। एक बात और ही संसार की है कि अगर बेटे पे कोई आपदा आती है तो माँ बहुत दुखी होती है कि नहीं शुक्र कृष्ण प्रभु। मदर इज सच ए काइंड हार्टेड पर्सन दैट सबसे ज्यादा पीड़ा उसको होती है। चाहे पत्नी को, भाई को, बेटे को, सबको होती रहेगी, लेकिन होते। तो अदिति बहुत दुखी हो गई और अदिति अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और कहा कि देखो ये क्या हो गया, मेरे पुत्रों को वहां से भगा दिया गया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को वापस उनका सम्मान प्राप्त हो। और कश्यप मुनि ने उनको 7 डेज भगवत गीता कोर्स देने की कोशिश की, थोड़ा उनको समझाया, आत्मा साक्षात्कार का दर्शन बताया, पदार्थ और आत्मा के बीच का अंतर बताने की कोशिश की, लेकिन अदिति उस समय दुखी थी, उसको समझ में नहीं आया। ऐसा कहते हैं ना कि कई बार व्यक्ति बहुत दुखी होता है या बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको फिलोसफी उसके दिमाग में घुसते नहीं है एक्चुअली। एनीवे, तो उसको समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम वासुदेव जनार्दन भगवान की पूजा करो, और पयोव्रत नामक एक पूजा प्रक्रिया के बारे में बताया कि ये पयोव्रत का व्रत करो तो उससे तुम्हारा ये संदेह जो है ये दूर होगा और भगवान प्रकट होंगे। तो 12 दिन तक अदिति ने, जो देवताओं की माता है, उन्होंने ये पयोव्रत व्रत किया, और उसको पूरा करने के पश्चात क्या हुआ, भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने उससे कहा कि हे अदिति, आपको मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्न विष्णु मत्तः सर्वम ज्ञानपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्यों ये प्रार्थना कर रही हो। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पीड़ा को दूर करूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार प्रकट होता हूँ। तो उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में मांगना था, और भगवान कहे कि ठीक है मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और इस प्रकार से अदिति को आश्वासन दे के भगवान जो है वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, और फिर अदिति के गर्भ में भगवान जो है वो प्रकट हुए कालांतर में। और भगवान जब प्रकट हुए तो पूरी तरह से शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए। जिस प्रकार से देवकी के गर्भ में भगवान जब प्रकट हुए तो पहले नारायण के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज नारायण के रूप में, और फिर भगवान कृष्ण के रूप में उनके समक्ष वो प्रकट हुए। और ऐसे बताते हैं कि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं है, भगवान तो अजन्मा है। भगवान आत्माराम है, आप्त काम है, अजन्मा है, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए
वो भगवान प्रकट होते हैं और जैसे अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि लीला आस्वादने धरे दो ही रूप, तो एक ही है भगवान, राधा कृष्ण एक आत्मा, लेकिन फिर भी डबल वो तैयार होते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान ना मृत्यु के अधीन है ना जन्म के अधीन है, वो सर्वोच्च है, वो एक साधारण जीव की तरह नहीं है, तो वो भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनका जो फॉर्म था, उनका जो रूप था, भगवान का रूप माधुरी, भगवान की नाम माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की लीला माधुरी बहुत ही मोहक है। तो यहाँ पर भगवान के रूप माधुरी का वर्णन हो रहा है और कहते हैं कि भगवान का चेहरा बिल्कुल कमल के समक्ष था, कमल के समान था। अभी आप सोचो कि भगवान को बताने के लिए किसी भौतिक पदार्थ की उपमा हम नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान का कंपैरिजन किसी भौतिक पदार्थ से हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिक है, वी आर मटेरियल, सो देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ a material element is given so that we can understand Krishna, how he probably will be looking. So his face was like lotus. इंडियन ऐसे कहते थे कि भगवान की आंखें वह भी, पद्म लोचन बोलते हैं उसको, भगवान की आंखें। और हमारी आंखें और कान के बीच में तो बहुत गैप है, लेकिन भगवान की आंख जो बिल्कुल कान तक पहुंचती है। यह स्मरण पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर, पुंडरीकाक्ष मतलब कमल के समान नेत्र, और भगवान का सारा अंग जो है वो कमल के समान है क्या नहीं? नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। तो भगवान का चेहरा बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था और उनकी छाती पे श्रीवत्स का निशान था। भगवान के हाथों में कंगन थे, और उनके बाहों में बाजूबंद लगे हुए थे, उनके सर पे मुकुट था, कमर में कमर पट्टी लगी हुई थी, छाती पर पवित्र यज्ञोपवीत था, पवित्र धागा था, और उनके चरण कमल को सजाते हुए नुपुर, ये भगवान के पायल, जिसको हम बोलते हैं पायल, छमछमा रहे थे। और उनके गले में एक फूलों की माला थी, उससे असामान्य रूप से सुंदर वो माला में से एक सुगंध प्रवाहित हो रही थी जो सभी को मनमोहित कर रही थी। इतना अच्छी तरह से होता, और बहुत बहुत सुगंधित फूल थे, और उस सुगंधित फूल के आसपास में भौरे मंडरा रहे थे। मधुमक्खियां, भौरे जो थे वो मंडरा रहे थे, और इस प्रकार से ये जो भिनभिनाने की जो आवाज आ रही थी वो प्राकृतिक आवाज, ये जो गुनगुनाहट थी ये इस प्रकार से वो थी। और मधुमक्खी भी उस मद में इतनी मदांत हो गई थी, भौरे, कि वो उस शहद को लेने के लिए, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए, ऐसा मानो, ऐसा लग रहा था कि भगवान पे अटैक करने जा रहे हैं, मतलब भगवान की माला पे। और वो जो थे, और भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनके गले में कौस्तुभ मणि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मणि है। तो ऐसे बताते हैं कि भगवान का शरीर एक प्रकार से काले रंग का है, लेकिन वो जो मणि है वो पूरा प्रकाश जो है वो फैलाता है। ऐसे भगवान के शरीर से ही प्रकाश निकलता है, वो एक अलग बात है। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मंती, पश्यंति पांति कलयंति चिरम जगंती। भगवान का एक एक अंग जो है वो हर कार्य कर सकता है, और अंग जो है वो बिल्कुल ऐसे बताते हैं कि भूषणाम यदि भूषणांगम, कि भगवान का अंग जो है, हम जनरली साधारण व्यक्ति क्या होता है कि अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए, अपने शरीर की सुंदरता बनाने के लिए आभूषण धारण करता है। लेकिन भगवान जब आभूषण धारण करते हैं तो उससे भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती है, पर आभूषण का की सुंदरता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि ने लिखा लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो लसत कुंडलम का मतलब ये है कि कोई साधारण व्यक्ति कुंडल पहनता है अपने रूप की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान जब उसी कुंडल को धारण करते हैं तो कोई उस कुंडल को जाके बोलेगा कि यार कुंडल क्या कान धारण किया है। हम लोग अगर कुंडल पहनेंगे तो कोई बोलेगा अरे कितना, ये तुम्हारे कान में कितना अच्छा कुंडल है, कान ने क्या कुंडल धारण किया है। लेकिन भगवान जब धारण करते हैं तो कोई कुंडल को जाके पूछता है कि क्या कान धारण किया, मतलब गया तो गया, कौन से कान में गया? भगवान के कान में गया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान कौस्तुभ मणि पहने हुए थे, और उसी समय सभी दिशाओं में नदियां और समुद्र जैसे जल भंडार जो थे वो पूरे के पूरे भर गए, और सबके हृदय जो थे वो आप्लावित हो गए। ऐसे कि जैसे कहते ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को हुआ जब से मैं तेरी शरण में आया मेरे राम। कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। कि जैसे डेजर्ट के अंदर हम लोग तप रहे हैं, और उस तपते हुए डेजर्ट के अंदर अगर कोई हमारे पे ठंडा पानी अगर पीने के लिए दे तो कितना आनंद आता है उसके अंदर। बताते कि ऐसे सबके हृदय जो थे वो आप्लावित हो रहे थे, और विभिन्न ऋतुओं ने अपने अपने गुणों का प्रदर्शन किया।
और ऊपरी ग्रह प्रणाली जो थी वो एकदम कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ओणम भी है, हैप्पी ओणम टू एवरीबॉडी। तो ओणम के दिन भगवान ये प्रकट हुए, तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या होता है कि जब कोई साधारण व्यक्ति प्रकट होता है तो उस समय शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र वगैरह देखे जाते हैं कि कौन से नक्षत्र में है क्या, या हम कभी कार्य करते तो इस प्रकार से नक्षत्र वगैरह देखते हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट होते तो सारे नक्षत्र एक लाइन में आ जाते हैं, हाँ? और एक लाइन में आके और वो शुभ मुहूर्त जो है वो क्रिएट करते हैं। तो भगवान के लिए सभी सभी जो ग्रह है वो भगवान के सेवक ही है, और वो सब आने लगे। और पृथ्वी पे सभी प्राणी जो थे वो आनंदित थे, देवता, गाय, ब्राह्मण, पहाड़, वृक्ष, लता पता और नदियां जो थी वो सभी प्रसन्नित थी, सभी प्रफुल्लित थी। और इस श्रावण द्वाद, ये श्रीमद् भागवतम कहता है, अर्थात भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि जो आज है, हाँ, आज की तिथि पे जब चंद्रमा, हाँ, चंद्र भवन में आया उस समय अभिजीत शुभ मुहूर्त में, तो ये अभिजीत मुहूर्त है जिसमें भगवान सूर्य के मध्याह्न में, मतलब आफ्टरनून में, हाँ, ये भगवान वामन देव प्रकट हुए। बोलो श्री वामन देव भगवान की जय। तो सभी तारे और ग्रह एक कॉन्स्टलेशन में आ गए, और जब भगवान प्रकट हुए, हाँ, तो ऐसा माना जाता था कि जैसे विजय प्राप्त हुई देवताओं को, हाँ। और उस समय संगीत का कार्यक्रम हुआ, म्यूजिक प्ले करने लगा, क्योंकि भगवान ने एंट्री की है, हाँ। तो भगवान की एंट्री हुई तो उसमें शंख, नगाड़े, ढोल, पांडव सारे के सारे सहसा अपने आप बजने लगे, और ऊपर से देवता प्रकट हुए और फूलों की वर्षा करने लगे, और ऊपर से नृत्य करने वाली अप्सराएं भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने लगी। और जो गंधर्व थे, उन्होंने गीत गाए, महान संतों ने श्लोक का उच्चारण किया, देवताओं ने, मनु, उनके पिता अग्निदेव, सप्तर्षि जो सब थे, सब ने भगवान को अपना अपना आशीर्वाद दिया। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चरण, यक्ष, राक्षस, सुपार्श, सर्वश्रेष्ठ नाग, देवता इत्यादि सभी प्रसन्न हो गए, और सभी भगवान की जय जयकार करने लगे कि बोलो जय श्री वामन देव भगवान की जय। इस तरह से जय जयकार हुई, और कश्यप मुनि, हाँ, वे जय जय करने लगे, उनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब ये कोई साधारण बात थोड़ी है कि भगवान किसी के पुत्र के रूप में प्रकट हो, हाँ। इवन सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या किया था माता यशोदा ने, हाँ, कि कृष्ण भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और तब पूरा इतिहास बताया विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी ने कि किस प्रकार से भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में प्रकट हुए, हाँ, कृष्णी और सुतपा से, उसके बाद में अदिति और कश्यप से वामन देव के रूप में कौशल्या, और दशरथ से भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, और अब कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट आए। और किस प्रकार से द्रोण और धरा ने तपस्या की थी इतने साल पहले, हाँ, उस तपस्या का फल था कि उनको तीन बार भगवान के प्राप्त हुए। इतना आसान नहीं है, हाँ। तो भगवान कहते हैं कि बाबा मुझे तो कोई ब्रह्म स्तुति करता है उसमें इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन जब मेरी माँ ये सोचती है कि अगर वो मुझे नहीं खिलाएगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो मुझे आनंद आता है, हाँ? माता यदि पुत्र मरे करना बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। बोले माता मेरा लालन पालन करती है सोच के कि अगर वो मुझे नहीं खिलाएगी तो मुझे क्या मिलेगा। अरे उसको क्या मालूम कि पूरा संसार भगवान के पेट में है, हाँ? और वो सोचती है भगवान का पेट जो है वो खाली है, भूखा है भगवान, तो उसको उसको खिलाने के लिए यशोदा मैया जो है वो तरह तरह के पकवान बनाती है, और राधा रानी को लगाती है, हाँ, खिलाने के लिए, कि भाई कुकिंग, राधा रानी तो इंचार्ज है कुकिंग का, हाँ। तो यशोदा मैया, तो भगवान कहते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सखा सुख शुद्ध करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। बोलते मेरे सखा जब कहते हैं कि तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही आमी सम, मुझे बड़ा मजा आता है, हाँ? प्रिया यदि मान करे, अगर राधा रानी मान कर जाती है तो मुझे बहुत आनंद आता है उसके अंदर, हाँ। सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में ऐसी मीठी ब्रज की गारी, बोले मुझे उसमें आनंद आता है। तो इतने सारे लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है उसके अंदर। और तब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए भगवान को, हाँ, देखा, और देख के आश्चर्यचकित हो गई कि अरे क्या बालक है, हाँ, क्या बालक प्रकट हुआ आज आज हमारे यहाँ पे। इंडीड भागवत में ऐसा कहा गया है
कि अगर किसी के परिवार में एक वैष्णव भी जन्म ले लेना तो उनके जो पूर्वज है वो नाचने लगते हैं। नृत्यंती पितरः, ये युधिष्ठिर महाराज के इस एपिसोड में आता है कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे आज हमारे घर के अंदर एक वैष्णव ने जन्म लिया। तो सोचो वो वैष्णव जिसकी आराधना करता है वो भगवान अगर प्रकट हो जावे तो क्या क्या बात है। और भगवान कैसे रूप में प्रकट हुए? वामन के रूप में प्रकट हुए। भगवान अनेक अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। कभी भगवान मछली के रूप में प्रकट होते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में, कभी कछुए के रूप में कूर्म अवतार, कभी वराह के रूप में प्रकट होते हैं, शुक्र अवतार के रूप में। और भगवान अब वामन बौने बालक के रूप में प्रकट हुए थे। वैसे अगर भगवान डायरेक्ट भी जाते थे तो बलि कोई मना नहीं करता था, लेकिन भगवान रस का आस्वादन को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पग लेके, छोटे छोटे, और भगवान के पग की क्या महिमा है। जे पद लागिया रमा तपस्या करिया, जे पद पाइया शिवा शिवत्व लभिया, जे पद पाइया ब्रह्मा कृतार्थ होइया, से पद नारद मुनि हृदय धरिया, एखोन बुझिन प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृता पूर्ण सर्वखान। ये भगवान के चरणों की महिमा है और ये भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। आज जिनका आविर्भाव दिवस है, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है ये भजन एखोन बुझिन। तो बोलते हैं कि उस चरण को प्राप्त करने के लिए रमा अर्थात लक्ष्मी ने हजारों करोड़ों साल तक तपस्या की। उस पग की कृपा प्राप्त करके शिवजी को अपना शिवत्व प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कृतार्थ हो जाते हैं उस पग की आराधना करके, और वही पग को श्री चैतन्य नारद मुनि अपने हृदय में धारण करते हैं। और उसी पग को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान आप मेरे सर पे रखो। बोलते कि प्लीज शिरते धोरिया, से पद अभय पद शिरते धोरिया कहते हैं कि वो इतनी महिमा है। तो भगवान छोटे छोटे पग लेके, अरे भगवान के पैरों की महिमा क्या बताऊं मैं आपको, भगवान खुद नहीं जान सकते। भगवान एक्चुअली, आपने ये श्लोक तो सुना ही होगा डेफिनेटली, करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य स्फुटं सपुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो बाल मुकुंद को मार्कंडेय ऋषि वो याद कर रहे हैं कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तो भगवान, सब जगह पानी ही पानी है, और उस पानी के बीच में एक बरगद के वृक्ष का एक छोटा सा पीपल का पत्ता जो है वो तैर रहा है, और उसके ऊपर भगवान पूर्ण रूप से नग्न, बिल्कुल वस्त्र नहीं धारण किए हुए, एक छोटे से नन्हे से शिशु के बालक के रूप में वहां पर प्रकट है, विराजमान है। और वो क्या कर रहे हैं? करार विंदे, करार विंदे का मतलब होता है अपने हाथ से क्या कर रहे हैं? पदार विंदम, पदार विंदम मतलब पद, अपने पैर को पकड़ रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ते हैं। आपने देखा रहेगा छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, भगवान को फॉलो करते हैं, अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं? कोई बताएगा? बताइए प्रभु जी, भगवान अपने हाथ से अपने पैर को क्यों पकड़ रहे हैं? क्या कारण है? What is the reason why Krishna is holding his feet with his hand? बोलिए बोलिए प्रभु जी, प्लीज पार्टिसिपेट। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Mataji. What's the question, Prabhu? The question is why Krishna is holding his feet with his own hand. So this verse, Karar Vinde Adar Vindele Mukar Vandam. Why So the why- whole world is people? Why the whole a lot of people are interested in my lotus feet? Let me taste that lotus feet. Yes. So what Krishna is doing is holding his feet by his hand and then Mukhar Vindam. He's putting in his mouth to say that what nectar is there in my feet. I don't understand why all the devotees are after my feet. They are all hanging there only. सब लोग उधर ही लटके हुए मेरे पैर के ऊपर। हाँ, भगवान के चरणों की महिमा का गान कर रहे हैं।
हाँ, तो क्या है मेरे पैर में ऐसा मुझे देखना है। तो इसलिए भगवान वहां पे लगे हुए हैं, तो वो भगवान छोटे छोटे पैर लेके आते हैं। हाँ, वो पैर लेके और बलि के पास चल के आते हैं। तो वो उस एपिसोड में हम लोग जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि वामन देव को, हाँ, कश्यप मुनि ने, हाँ, सबसे पहले वामन देव को एक यज्ञोपवीत दिया गया, पवित्र धागा जो है वो प्रकट की करवाया गया। और सूर्य भगवान ने, हाँ, व्यक्तिगत रूप से गायत्री मंत्र दिया, क्योंकि उनको जनोई देना था, उनको यज्ञोपवीत धारण करवाना था। तो उस समय क्या किया कि भगवान सूर्य देव ने उनको गायत्री मंत्र का उच्चारण दिया। बृहस्पति ने वो धागा प्रदान किया। यज्ञोपवीत जब हुआ तो वो यज्ञोपवीत जो दिया, और कश्यप मुनि ने उनको एक क्या बोलते हैं, एक जो दुपट्टा होता है वो दिया। धरती माँ ने उन्हें मृग छाल प्रदान की। हाँ, वामन देव को धरती माँ ने क्या दिया, डियर स्किन, मृग छाल प्रदान की। और चंद्रमा, हाँ, उन्होंने एक छड़ी प्रदान की, उनको एक एक छड़ी दी। और माँ अदिति ने उनको कोपिन प्रदान किया पहनने के लिए। और अ, इंद्र ने उनको छत्र प्रदान किया। तो जो छत्र उनके हाथ में है, हाँ, वो इंद्र ने प्रदान किया। और भगवान जब निकले, हाँ, तो ऑब्वियसली भगवान अभी एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में है, उनका यज्ञोपवीत हो गया है, गुरु के लिए भिक्षा मांगनी है, तो उनको एक भिक्षा का पात्र भी चाहिए ना। अभी सोचो भगवान कौन है। चिंतामणि प्रकर सद्मस्कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो वैकुंठपति, वो लक्ष्मीपति जिसके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां जो लाइन में खड़े रहती है उनकी सेवा करने के लिए, वो वैकुंठपति, वो लक्ष्मीपति, वो भीख मांगने के लिए जा रहे हैं कटोरा लेके। हाँ, सोचो, कटोरा लेके। और वो कटोरा उनको किसने दिया, कुबेर ने दिया। हाँ, जो देवताओं के खजांची है, वो कुबेर ने उनको कटोरा दिया। और वो भगवान, हाँ, जिनकी सत्ता क्या बताए, ऐसे बोलते हैं कि जिनसे सारे बड़े बड़े देवी देवता भी मुह्यंति यत् सूर्य, वो भगवान क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ तेरा होगा बड़ा कल्याण भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो भगवान वो भीख मांगने के लिए मतलब गए। और भीख मांगने कहाँ जा रहे हैं, राजा बलि के उस यज्ञ में, जहां पर यज्ञ हो रहा है। और बलि महाराज वहां यज्ञ कर रहे हैं, बैक टू बैक 100। हाँ, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको कहा कि तुमको इंद्र बनना है तो ये अश्वमेध यज्ञ करते जाओ, 100 यज्ञ करोगे इंद्र बन जाओगे। हाँ, तो इंद्र के यज्ञ करने के लिए वो वहां पर यज्ञ में बैठे हुए हैं, और भगवान वहां पर जाते हैं। ओके, पर उसके पहले यानी में बहुत कुछ होता है, पर मेरा एक आंख जो है वो टाइम पे है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसको करता हूँ। तो भिक्षा मांगने के लिए भगवान वहां पर गए। और जब भगवान को पता चला कि बलि, राजा बलि जो है, हाँ, जैसे आज हमको इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हैप्पी ओणम के, बलि इज कमिंग बैक, और वो सब है। तो बलि महाराज जो कि कौन, बलि एक्चुअली कौन है, प्रहलाद महाराज के वंशज है। हाँ, प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र है वो बलि राजा। हाँ, जो आत्मनिवेदन के को जिन्होंने पूर्ण किया है, वो बलि वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। और इसे बताते हैं कि वामन देव वहां से चलते हुए नर्मदा नदी के तट पे गए, और एक भृगु गच्छ, ये स्थान जिसको आज के मॉडर्न रूप में भरूच बोलते हैं गुजरात में, तो भरूच में वो वहां पर आए, जहां पर बलि का वो यज्ञ चल रहा था। और वो वहां पर आए, और वहां पर आके उन्होंने देखा कि जो जो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे वो बड़ा अद्भुत यज्ञ था। ऐसे बताते हैं कि हजारों हजारों सूर्य एक साथ अगर प्रकट हो, तो उस प्रकार से उस यज्ञ के अंदर से अग्नि निकल रही थी, और बहुत बड़े भव्य लेवल पे वो यज्ञ हो रहा था। लेकिन उस यज्ञ में जब उस एरिना में जब वामन देव एंटर्ड इनटू दैट एरिना, वामन देव के तेज से वो जो यज्ञ था वो फीका पड़ गया। तो वामन देव के सर पे सुनहरे बाल है, और चांदी के जैसा उनका स्वरूप है पूरा, गौर मतलब एक पीले रूप में, एक्चुअली पहले काले रूप में प्रकट हुए थे, पीले वामन देव, आपने फोटो देखा रहेगा, वामन देव जो है वो गौर वर्ण लेके प्रकट हुए। और उनके उस तेज से, भगवान के उस तेज से वो सारा जो यज्ञ था वो फीका पड़ गया, और हर किसी की नजर जो है वो अभी वामन देव पर टिकी हुई थी।
तो ऐसा बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना तन जो है वो गोरा चांदी के जैसा चाहते हैं और अपने बाल ब्लॉन्ड, अपने बाल जो है वो गोल्डन चाहते हैं। तो भगवान के बाल नेचुरल थे। हाँ, चांदी जैसा तन है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल। तो ये जो पिक्चरों के भी गाने बनते हैं सब भगवान के पास में से ही आते हैं एक्चुअली। तो वहां पर सारे देवता प्रकट हुए क्योंकि भगवान वहां पर एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में, एक बौने बालक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और वो जाके कुछ मांगने वाले थे जो सभी को देने वाले हजारों हजारों हाथों से है। हाँ, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, ऐसे बताते हैं कि भगवान के सहस्त्र शीर है, हजारों करोड़ों हाथ है जिससे भगवान देने देते हैं। हाँ, और सबसे बड़े दाता है। हाँ, दाता शिरोमणि, ऐसे बताते हैं कि भगवान, लेकिन वो भगवान वहां पे मांगने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सारे के सारे देवता जो है वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और जब बलि महाराज देखते हैं कि स्वयं ये, मतलब उनको भी पता चल ही जाता है कि ये शायद विष्णु ही होंगे क्योंकि इतना अट्रैक्टिव और कौन हो सकता है। आकर्षिते इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षित करते हैं वो कृष्ण वामन के रूप में प्रकट हुए। बलि महाराज मोहित हो जाते हैं उनको देख। अरे बलि महाराज तो क्या, बलि महाराज के परिवार के सारे लोग मोहित हो जाते हैं। हाँ, उनके भाई बहन बीबी पत्नी बच्चे जो भी होंगे सब कुछ मोहित हो जाते हैं और वो तुरंत उठ के खड़े होते हैं और बलि महाराज वामन देव का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक और सम्मान पूर्वक स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार मेरा आपको प्रणाम है, प्लीज बताइए हाँ आपका क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने के लिए और हम आपकी क्या क्या सेवा कर सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पूर्वज जो है वो मुझसे संतुष्ट है और उसी का फल है कि आप मेरे घर पधारे हो। तो ऐसे बताते हैं कि जो अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं ना हम। तो कोई भी अतिथि आए वो देव के समान है, लेकिन अगर भगवान अतिथि के रूप में आते हैं तो फिर मानना ही क्या। तो कहते हैं कि मेरे पूर्वज जो है वो मुझसे संतुष्ट है और आज मेरा पूरा परिवार और मेरा वंश जो है वो पवित्र हो गया है और जो हम कार्य कर रहे हैं उसका पूर्णाहुति हो गया है हमारे लिए आपके प्राकट्य से। तो आप आए हो, हम लोग बहुत बहुत प्रसन्न है और शास्त्र के आदेश के अनुसार हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित है और यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आप आए हो तो हमको ऐसा लगता है हमको फल प्राप्त हो गया है। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप हमारे सामने प्रकट आए हो। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है ब्राह्मण, क्योंकि आप एक बैगिंग बॉल लेके आए हो, एक आप कटोरा लेके आए हो और एक ब्राह्मण के रूप में आए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ मांगने के लिए आए हो। हाँ, बलि ऐसा कहते हैं कि आप मांगने के लिए आए हो तो तुम जो कुछ चाहो वो मुझसे मांग लो। हाँ, जो भी मेरे से बनेगा और जिस जो भी मेरा, इंडीड अभी तो मैं पूरे सबका आधिपत्य हूँ, सबका स्वामी हूँ, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। हाँ, भोजन चाहिए। तो बलि समझो एक तरह से देखा जाए तो इतना मूर्ख है बलि कि भगवान को कहता है कि क्या तुम भूखे हो। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को क्या है, भोजन प्रिय होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। पंगत के अंदर पहले जाके भगवान बैठ जाते हैं, ब्राह्मण बैठ जाते हैं, तो बोलते ब्राह्मण भोजनम प्रिया, कि आपको भोजन चाहिए तो स्वादिष्ट भोजन मैं प्रदान करूंगा। आप ब्राह्मण हो, विवाह का अगर आप प्रस्ताव लेके आए हो, अगर आपको एक अच्छी कन्या चाहिए तो आपको कन्या प्रदान करूंगा मैं, एक अच्छे ब्राह्मण की बेटी के साथ आपका विवाह करवाऊंगा मैं, आपको समृद्ध गांव दूंगा, आपको घोड़े हाथी रथ पैसे जो कुछ चाहिए प्रदान करूंगा, मांगो क्या चाहिए। हाँ, तो कई बार जो देने वाला होता है ना उसको थोड़ा अहम हो जाता है कि भाई मैं देने वाला हूँ, मैं दे रहा हूँ। लेकिन भगवान के ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं इस इतिहास में कि जो भगवान जैसे कुबेर, अभी मेरे को इमीडिएटली सॉरी नॉट कुबेर, कुरेश, इमीडिएटली कुरेश जी का नाम याद आ रहा है कि इतने बड़े दानी थे। तो एक बार लक्ष्मी ने ऐसा आवाज सुना टर करके, दरवाजा खुलने का और बंद होने का। तो पूछा भैया कि आवाज कहाँ से आया, बोला कि जो कुरेश जब जब वो दान देते हैं, हाँ, तो इतनी बड़ी लाइन लगती है कि सुबह से लेकर शाम तक उनका दान चलते रहता है। और बताते हैं कि अगर लक्ष्मी देवी स्वयं भी वहां पर चली जाए तो उनका दान कम नहीं होगा। तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन बहुत हम्बल सब थे। रहीम दास जी के बारे में मुझे याद आता है कि रहीम दास जी का ऐसा था कि जब भी वो दान देते थे किसी को तो आंखें झुका देते थे। हाँ, तो जब जब दान देते थे आंखें झुक जाती थी उनकी। तो किसी ने जाके गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, और तुलसीदास जी तो जानते थे कि बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनका परिचय पूरी दुनिया से करवाना चाहते थे, तो एक लाइन लिख के भेज दी कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचा करो क्यों तो नीचे नैन। तो बोले कह रहे ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो संत,
कि जब जब तुम हाथ ऊपर करते हो वैसे वैसे आंखें नीचे झुका देते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो रहीमदास जी शर्मा जाते हैं और वो कहते हैं कि देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासु नीचे नैन। तो बोलते लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं देने, अरे देने वाला तो भगवान है, वही देता है, तो इसके लिए मेरी आंखें झुक जाती है। तो एनीवे बलि आता है और बलि उनसे कहते हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो जब बलि महाराज को इस प्रकार से बोलते हुए सुना तो वामन देव थोड़ा प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। लेकिन सर्वोच्च भगवान व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा कि हे राजा आप महान हो, हाँ, कि आप इस वंश में भी यहाँ पर आप ये यज्ञ कर रहे हो, और मैं ऐसा जानता हूँ कि आपके परिवार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति कभी कंजूस नहीं रहा, हाँ, दे आर ऑलवेज दानी, और आपके वंश में बड़े बड़े लोग प्रकट हुए हैं, हाँ, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज हाँ, ऐसे विरोचन, ऐसे सब जो लोग प्रकट हुए, और उनकी पूरी हिस्ट्री उनको बताने लगे कि किस प्रकार से जब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत की खबर सुनी तो कैसे विष्णु पे अटैक करने के लिए आ गए, और पूरा पूरा कथा सुनाने लगे उनको। और फिर उन्होंने कहा कि हे दैत्यों के राजा बलि, हाँ, हे महामहिम, हाँ, आपके कुलीन परिवार में ऐसे ऐसे लोग जो दान देने में बहुत समक्ष है, लेकिन मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, छोटा बौना बालक हूँ, मुझे आप खाली 3 पग भूमि दो, और वो भी मेरे साइज का। भगवान ने क्या मांगा कि जस्ट गिव मी 3 स्टेप्स ऑफ लैंड, दैट्स आल्सो मेजरिंग ऑफ माय स्टेप्स। तो ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि आप समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रक है, आप बड़े उदार है, आप मुझे भूमि देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आप मुझे कन्या देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आप मुझे हाथी घोड़ा रथ सब दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट 3 स्टेप्स ऑफ लैंड, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बस, दैट्स इट। तो फिर क्या हुआ कि जब भगवान ने ऐसा कहा तो बलि हंसने लगा जोर जोर से। क्यों हंस रहा था? और हंस के बलि ने कहा कि मैंने अब तक सुना था कि ब्राह्मण मूर्ख होते हैं, लेकिन आज डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया मैंने, आज मैं साक्षात देख रहा हूँ कि ब्राह्मण मूर्ख होते हैं। अरे मैं तुमको क्या नहीं दे सकता, हाँ, तुमको तीनों लोक दे सकता हूँ, तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, मेरा इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, जैसे समझो अगर कोई यहाँ के राजा के पास जाए, शेख साहब के पास, और जाके उनसे और वो कहे कि चलो आज मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुमको, और आप जाके कहो कि मेरे को अजमान या रासल खेमा में 1 स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, तो उसको कैसा लगेगा? कि इंसल्ट लगेगा कि अरे यार मैं तेरे को क्या नहीं दे सकता हूँ और तू क्या मांग रहा है, बरोबर मांगा नहीं। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम ब्राह्मण तो हो लेकिन बुद्धिमान नहीं हो, ऐसा कौन कहता है? बलि कहता है वामन देव को, कहते हैं कि हे छोटे बालक, ऐसा उनको पुकारते हो कि हे छोटे लड़के, हाँ, मेरे पास जो कुछ भी मांगने आता है, हाँ, मैं उसको पूरा करता हूँ और उसको देने के लिए सक्षम हूँ, आप जो चाहे मांग लो मुझसे, पर तुम 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? और तब वामन देव ने एक बहुत पते की बात कही, और उन्होंने कहा कि हे प्रिय राजा, जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, हाँ, और जो जितना उनको प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होगा, उसको चाहे 3 लोक भी दे दो तो भी संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जो 3 भग भूमि से संतुष्ट अगर नहीं होता हूं मैं, तो निश्चित रूप से 7 द्वीप तुम मेरे को दे दो, हाँ, उसमें भी मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तो सेटिस्फैक्शन इज द की, संतोष जो है यह मुख्य जीवन के सुख की चाबी है। हाँ, कि जैसे अगर समझो ये पूरा संसार है जिसपे कांटे बिछे हुए हैं, पथरीला है, और कोई हमको कहे कि इस पे चलो, और हम कहे कि नहीं, हम कांटों पे और पथरीले पथ पे चल नहीं सकते, तो इस पूरे पथ पे आप क्या करो, आप रबर बिछा दो, हाँ, आप कुछ चद्दर बिछा दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, पूरे संसार के अंदर हम रबर नहीं बिछा सकते, लेकिन दूसरा ऑल्टरनेट क्या है कि एक रबर का जूता खरीद सकते हैं, वी कैन बाय रबर शूज, और वो रबर का शूज पहन के और उसके ऊपर हम आराम से चल के जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से उस पूरे दुनिया का सुख जो है वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। हाँ? शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशान विहितम जातम टुंडम वृद्धो यापि ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, अंग उसका गलने लगेगा मोमबत्ती की तरह, अंगम गलितम पलितम टुंडम, उसके सारे बाल झड़ जाएंगे, हाँ, दांत सारे उसके सारे 32 प्लेयर जो है वो आउट हो जाएंगे, हाँ,
लेकिन फिर भी उसकी आशा कम नहीं होगी। अरे एक कलम ले लो जिसका लंबाई आसमान को छू लेवे, इतना बड़ा कलम लो और उसके अंदर स्याही भरो जितना बड़ा समुद्र का पानी है। 7 समुद्र का पानी लेके उसके अंदर स्याही भरो और अपनी इच्छा लिखना शुरू करो, स्याही खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म नहीं होगी, है कि नहीं? If you take a pen which is as long as it touches the sky and take the ink which is as vast as the water of the ocean, you put that water, that ink into the pen and start writing desires. That ink will be over, but our desires will never be. That is the uh, paradox actually. तो उन्होंने कहा कि हे दयालु राजा, आप चिंता मत करो, आप मुझे 3 पग भूमि दे दो। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो शुक्राचार्य ने तुरंत रोका। हाँ, वो अपना संकल्प करने जा रहे थे तो शुक्राचार्य ने रोका और कहा कि अरे मूर्ख बलि, ये बौने बालक के रूप में जो आया है जानता है तू कौन है? ये विष्णु है, विष्णु। हाँ, ये नारायण है और ये तेरा सब कुछ छीनने के लिए आया, हरि है, ये हरने के लिए आया है। हाँ, तेरा सब कुछ हरने के लिए आया है, तू इसको संकल्प मत कर, इसको तू दान मत दे। और फिर एक्चुअली पूरे के पूरे मतलब ऐसे बोलते हैं कि संदर्भ में उन्होंने बताया कि क्या क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि 3 पग तुझसे जमीन मांगेगा और फिर अपना आकार बढ़ा लेगा। एक पग के अंदर पूरा ये लोअर प्लैनेटरी सिस्टम को ये कवर कर लेगा, दूसरे पग के अंदर अपर प्लैनेटरी सिस्टम को कवर कर लेगा, सब कुछ तेरा छीन लेगा। तो तीसरा सिर कहाँ रखेगा? तीसरा पैर कहाँ रखवाएगा? तू हार जाएगा, तू ऐसा मत कर, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा और तेरा सब कुछ छीन के और तेरे शत्रु इंद्र को दे देगा, तीनों लोगों पर कब्जा कर लेगा। पहले एक पैर से कब्जा करेगा, फिर दूसरे पैर से कब्जा करेगा, फिर तीसरा पैर तू कहाँ पे रखने देगा? तू एक काम कर, तू अपना ये जो वचन है, ये वचन मत दे उसको, या वचन दे दिया तो पूरा मत कर। तो इस प्रकार से कहने लगा। लेकिन बलि भी जो है वो प्रहलाद महाराज का प्रपुत्र है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं वचन दे चुका हूँ और अपने वचन से मैं पीछे नहीं हट सकता। अपने वचन से क्या मैं पीछे हटूंगा? मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ कि अपने अपने वचन से पीछे हटूंगा? नहीं, पैसे के लालच में मैं अपने वादे को कैसे भूल सकता हूँ? तो आप गुरुदेव, आप एक काम कीजिए, मैं और अगर ये विष्णु है, और अगर मुझसे मांगने आए तो जीवन का तो उद्देश्य है कि विष्णु को सब कुछ समर्पित कर देना, सम सिद्धि हरितोषणम। तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तेरा सब कुछ छीन लेगा, मुझे डर है, इसलिए मैं तुझे मना करता हूँ। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया इन वन सेंस। तो ऐसे बताते हैं कि गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु और पिता दोनों की आज्ञा का 100% पालन करना चाहिए। लेकिन केवल एक ऐसा एक्सेप्शन शास्त्र में दिया है कि जिसमें आप गुरु की अवज्ञा कर सकते हो या पिता की अवज्ञा कर सकते हो, और वो ये है कि जब आप भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो रहे हो और आपके पिता पर आपको रोक रहे हैं, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। या फिर एक बेटा ब्रह्मचारी बनना चाहता है और उसका पिता उसे रोक रहा है ब्रह्मचारी बनने से और जबरदस्ती शादी करवा रहा है, उस समय वो शादी करने के लिए ना कह सकता है और अपने पिता की आज्ञा का पालन न करेगा तो भी चलेगा। ये शास्त्रों का प्रमाण है। अदरवाइज एवरी वर्ड विच गुरु सेज वन मस्ट फॉलो। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्याम वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भावयत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। Anyway, I think I made a mistake, but साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भावयत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। सो गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत् उपदेक्षन्ति तम ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि गुरु के शरण में जाना चाहिए। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। और गुरु की हर एक बात जो है पत्थर के लकीर की तरह है। लेकिन केवल एक एक्सेप्शन यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करता हूँ, उस वचन को पूरा नहीं करता हूँ, तो मुझे नर्क प्राप्त होगा, दरिद्रता मिलेगी, अपने पद से मैं गिर जाऊंगा। ये सब मेरे लिए मान्य है,
लेकिन मेरा वचन जो है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। कि हम लोग, तो वो भी प्रहलाद के वंश में आने वाले बलि महाराज, उन्होंने कहा कि मेरा वचन जो है वो मैं पीछे नहीं लूंगा। और फिर वो कई एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से दधीची, शिबी ने और इन्होंने सबने अपने दान देने में कभी पीछे नहीं हटे वो लोग, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं। तो इस प्रकार से कहने लगे और फिर आगे आए और अपना संकल्प करके, और उन्होंने और संकल्प किया, और फिर भी शुक्राचार्य माने नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो जो कमंडलू था उसके अंदर घुस गए कि भाई पानी बाहर नहीं निकलेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा। तो वामन देव ने एक 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 घास का तिनका लेके और उसके अंदर घुसाया कि ताकि पानी बाहर आवे, और उससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, वो काणे हो गए, है कि नहीं। तो एनीवे फिर बाहर आए और वामन देव ने बलि महाराज ने वामन देव को अपना वचन जो था वो पूरा करने के लिए सज्ज हो गए। और फिर वामन देव ने त्रिविक्रम के रूप में अपने आप को विकसित किया, और एक छोटे से बौने बालक के रूप में वो बहुत बड़े बने। जैसे जब अर्जुन भगवान को एक विश्व रूप में देखना चाहता था, तो भगवान धीरे 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 बहुत बड़े उसके सामने प्रकट हुए। बहु वक्त्र नेत्रम, बहुत सारे उनके हाथ पैर और शरीर इतना बड़ा था, वो बने। और भगवान ने अपने एक पैर से पूरा निचला जो भूमि है, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, उसको कवर किया, दूसरे पैर से किया, और तीसरा पैर फिर बलि को कहा कि तूने मुझे 3 पग भूमि देने का वादा किया था, अभी तीसरा पग का क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा भगवान अभी सब कुछ मैं समर्पित कर चुका हूँ, तीसरा पैर आप मेरे सर पे रखो। और फिर वह अभय पद जो है वो भगवान ने बलि के सर पे रखा, और उसको भूमि से नीचे सुतल प्लैनेट के अंदर भेज दिया, और उसका सब कुछ छीन लिया, और सब कुछ छीन के और फिर देवताओं को दे दिया। लेकिन बलि को भगवान ने उसके आत्मसमर्पण के लिए, आत्मनिवेदनम के लिए आशीर्वाद दिया, और कहा कि हे बलि, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, और तुझको, तू इंद्र बनेगा कुछ टाइम के बाद में, और तब तक सूतल का राज कर। और सूतल के अंदर इंद्र से भी ज्यादा वैभव है, मतलब इंद्र लोक से भी ज्यादा वैभव जो है सूतल लोक में है, और मैं स्वयं तेरा एक पार्षद बनूंगा, एसोसिएट बनूंगा। और भगवान उनके द्वारपाल बने। और सोचो, द्वारपाल की जो ड्यूटी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। और द्वारपाल बनने के बाद भी ही वॉज अंडर एंजाइटी। वाई? बिकॉज जो सूतल प्लैनेट का जो महल था उसके 4 दरवाजे थे। अब वामन देव को ये पता नहीं था कि बलि महाराज कौन से दरवाजे से बाहर निकलेंगे, तो उनको वो घूमते रहते थे सुदर्शन के जैसे चारों दरवाजे पे, कि जिस दरवाजे से बलि महाराज बाहर आएंगे मैं उनको सलाम करूंगा। सो एक एक जो द्वारपाल होता है, वो सलाम करता है जब उसका मालिक बाहर निकलता है। तो सोचो भगवान क्या है, वैकुंठपति है, यहाँ पर एक द्वारपाल के रूप में खड़े हैं सलाम मारने के लिए, कि सलाम, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब करने के लिए। तो ऐसे भगवान की कृपा है जो उन्होंने बलि पर प्रदान की। और बलि महाराज ने अपना आत्मनिवेदन, अपना पूरा का पूरा तन मन धन जो भी था वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। और वो अर्पण करने पे और पूरा का पूरा भगवान को प्रसन्न किया आत्मनिवेदन से। तो हम जानते हैं कि भक्ति के जो 9 अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदनम जो है वो किसने पूरा किया? बलि महाराज ने पूरा किया, अपना इस प्रकार से सर्वस्व भगवान पे न्यौछावर करके। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान को अपना समय, अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपना द्रव्य देके हम लोग कभी घाटे में नहीं पड़ेंगे। ये घाटे का सौदा नहीं है। ये सौदा जो है, ये सौदा बहुत ही विशेष सौदा है। तो भगवान को अगर हम कुछ देंगे, अगर भगवान को एक ईंट अर्पण करेंगे, भगवान इमारत खड़ी करके दे देंगे। तो भगवान ने क्या किया कि बलि ने 3 पुग भूमि दी, लेकिन बलि को सुतल राज्य दे दिया भगवान ने, जो विच इज मच ऑप्युलेंट, ज्यादा वैभवशाली है इंद्र के आसन से भी। तो इंद्र को फायदा हुआ, लेकिन इंद्र से 10 गुना फायदा जो है वो बलि महाराज को हुआ। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बलि महाराज का स्पर्श भगवान के पैरों का, जिसके भगवान के नाखून तक कोई पहुंच नहीं सकता, भगवान ने अपना पैर जो है वो बलि के सर पे रखा। कितना बड़ा भगवान ने उसको कृपा प्रदान की बलि को। और उस समय प्रहलाद महाराज प्रकट हुए और बलि को भूरी भूरी आशीर्वाद दिया, कहा वाह, तूने मेरे वंश का नाम रोशन कर दिया, तू मेरा कुल दीपक है, कि किस प्रकार से तूने भगवान को प्रसन्न किया, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने, और वहां पर जमा हुए जितने भी देवी देवता थे, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी देवी और अन्य सारे देवी देवता, सब लोगों ने मिलकर भूरी भूरी प्रसन्नता से आशीर्वाद प्रदान किया
और वे आशीर्वाद जो है ये बलि का सबसे बड़ा ट्रेजर है। तो हमको भी किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए भगवान के लिए। हाँ, तो जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, और शरणागति ये जो है ये हमारे भक्ति का एक मूल अंग है। हाँ, शरणागति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब तक हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, हाँ, भगवान हमारे पास में शायद हमको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देते। लेकिन जब कोई व्यक्ति शरणागत हो जाता है भगवान के, हाँ, तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं कि भगवान के शरणागत हो गए। तो यही है बलि महाराज के इस लीला से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से जब भगवान आए, या न मांगते हुए भी हम हमको भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। तो ऐसी भावना हमारे मन में तो अभी तक तो नहीं है, और ना ही हम इसका कभी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इंडीड हम सारे लोग, या हम जब भगवान को कुछ अगर देते भी है, तो रूप गोस्वामी ने तो कहा 50%, लेकिन हम तो उतना दूर नहीं जाते हैं। लेकिन किसी के पास लाखों रुपए है तो खाली भगवान को 1000 रुपए देता है या 100 रुपए देता है, तो भगवान देखते हैं या भगवान देखते नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इस्कॉन के डिवोटीज की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, देखा है और सुना भी है कि बाहर ऐसे बड़े बड़े फ्लैट लोगों के रहते हैं। जैसे भी हमने देखा भक्तों के घर में तो सेंटर के अंदर भगवान का मंदिर होता है, राइट। लेकिन दूसरों के घर में हमने देखा है कि सेंटर में टीवी रहता है, और भगवान का मंदिर जो होता है वो एक छोटा सा बॉक्स टाइप मंदिर होता है, जिसको लोग लाते हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको किचन के अंदर लगाते हैं, ठोकते हैं वहां पे किचन पे। वहां पे क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि हॉल के अंदर तो टीवी रखा है, बेडरूम में गलत काम करता हूँ वहां नहीं रख सकता, तो करूँ तो क्या करूँ, उसको किचन में रखते हैं। और किचन में रखकर भगवान का छोटा सा फोटो लाके वहां पे चिपका देते हैं, और सुबह एक बार अगरबत्ती और शाम को एक बार अगरबत्ती शायद करते हो, और दिन में 3 बार सब्जी का छौंक लगा देते हैं कि चलो भाई भगवान, हम जब छौंक लगाते हैं तो किचन में आपको सुगंध उसकी आ जाएगी, कृष्णार्पणम वस्तु, आप स्वीकार कर लेना, बहुत हो गया। हाँ, तो क्या भगवान देखते नहीं है कि अपने लिए तो बड़ा महल बनाया और मुझे कॉर्नर में किचन के अंदर टंगा दिया है, खूंटे पे लटका दिया है। हाँ, अपने लिए तो 3000 रुपए का घी मंगा के खाओगे, देसी घी, और भगवान को ऑफर करते दिए के अंदर डालडा घी। तो क्या भगवान देखते नहीं है कि भाई मुझे डालडा दे रहा है, खुद एकदम प्योर घी खा रहा है। भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन भगवान फिर भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, और भगवान देखते हैं कि कौन कितना आता है। तो भगवान ये नहीं देखते कि हमने कितना दिया, भगवान ये देखते कितना पीछे बचाया। कृष्णा डजंट सी हाउ मच वी आर गिविंग, ही सीज व्हाट यू हैव पुट इट बैक ऑन योर पॉकेट। कितना बचा के रख दिया है, और क्या बचाने का फायदा। ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, है कि नहीं? ये हम जानते हैं, वी नो इन थियोरी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस इट इज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। बट यही है कि ये लीला से हमको सीखना है, और फिर उसको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, कि भाई अंत समय जब आवे मेरा, सब हम इसको छोड़ देवे, देयर इज नो अटैचमेंट। जो भी है, जो आना रहेगा आएगा, हमारे साथ वैसे भी कुछ नहीं जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। धन दौलत कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। अरे कितने सारे भजन कवाली गानों में भी हम सुनते रहते हैं अलग अलग तरह से, कि तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 दिन की महिमा तेरी जिंदगानी है। और क्या, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं उस चीज को। लेकिन आज हमको मेडिटेट करना चाहिए वामन देव के श्री चरणों पर, बलि महाराज के इस सेक्रीफाइस पे, कि किस प्रकार से हम भी जब समय आएगा हमारा पूरा, तो हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देंगे, बिना कुछ रोक टोक के, बिना किसी चीज को माने हुए। हम कुछ भी अपने लिए पकड़ के नहीं रखेंगे, सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कि अंत समय जब आवे मेरा, तब मैं सब कुछ भगवान को दे दूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके यूं प्राण तन से निकले। तो हम ऐसा गा तो लेते हैं, लेकिन जब सच में हमारा जब समय आएगा, तब वो हमारी परीक्षा होगी कि किस प्रकार से हम बलि महाराज की तरह अपने आप को आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, शरणागति कर सकते हैं कि नहीं। तो इतना कह के मैं यहीं पे विराम देता हूँ, हमारा समय पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रामेश्वर कन्हई प्रभु, Sukar Krishna Prabhu, Ajit Prabhu, and all the other devotees who are there in the forum for bestowing
your mercy upon me, giving me an opportunity to serve. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Vamandev Bhagwan ki jai. जय की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Prabhuji. Hare Thank you. Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Amazing class. so many things. Told about Vaman Dev and Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, Haridas Thakur. पूरा भागवतम complete you unfold.